Hi everyone. So, if you are preparing for NABARD grade examination, then this particular video is absolutely for you, and it is one of the most important video for you because after watching this 10 minutes video, you will be able to solve at least 2 to 3 questions in your NABARD examination, either phase 1 or phase 2, दोनों के लिए, right? Now, in this particular video, we are going to talk about basic animal husbandry statistics for the year 2025, which has been recently released by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. This particular statistic, this particular report provides us the estimate of the four major livestock products, not livelihood, livestock products, milk, egg, मीट एंड वुल. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एंड ट्रस्ट में बहुत छोटी सी रिपोर्ट है. ठीक है, इसीलिए आपको ये जल्दी भी हो जाएगी और इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेज 1 फेज 2 मिला के डेफिनेटली आपको मिलेंगे. एंड ये मैं सोचना कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन, भैया एक रिपोर्ट से अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है. चलिए स्टार्ट करते हैं. भाई डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं, इस सर्वे के बारे में बात करूं, सो इट इज कंडक्टेड बाय एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. ठीक है, कौन कराता है इसको? एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों करना है हमें ये वाला सर्वे? इट इज फॉर प्रोड्यूसिंग द एनिमल वाइज ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट और यूटी लेवल एस्टिमेट्स ऑफ 4 मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग, मीट एंड वुल. ठीक है, 4 लाइव स्टॉक जो प्रोडक्ट्स है हमारे, उनके बारे में हमें ये एस्टिमेट देता है दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. दिस पर्टिकुलर सर्वे इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू provide us the estimate regarding the 4 livestock products. These are milk, egg, meat and wool, right? And it fulfills the need of timely availability of reliable data relating to the various livestock indicators, my dear friends, as well. ठीक है जी, आगे चलते हैं. So this statistics for the year 2025 and for in fact for every year, this basic animal husbandry statistic has been compiled from the data taken from 2 sources. The data have been taken from 2 sources. These are livestock census and integrated sample survey. ठीक है, 2 जगह से डेटा लेके इसको हमने कंबाइन किया है, कंपाइल किया है. एक तो है लाइवस्टॉक सेंसस और दूसरा है इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे. लाइवस्टॉक सेंसस जो होता है दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री, while integrated sample survey provides annual estimate of major livestock products like milk, egg, meat and wool. ठीक है, तो ये जो लाइवस्टॉक सेंसस है और जो इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, इन दोनों को मिला के हमने क्या करा, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स को प्रोड्यूस करा, कंपाइल करा. ठीक है जी, क्लियर है ना? And this time an online, or you can say an electronic platform was used for collection of the data, for segregation of the data, for production of the data, and that is called, that electronic platform is called as ELIS, which stands for E Livestock Integrated Sample Survey, right? It is an end-to-end solution and it has replaced manual paper-based processes with a robust digital end-to-end solution. It is an electronic platform with which this integrated sample survey was conducted. Data collection, data segregation, data processing, everything was done through this particular platform that is called as what? ELIS. ठीक है जी, क्लियर है? And this ELIS was developed by ICAR, Indian Agricultural Statistics Research Institute. ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया था. ठीक है, तो ये हो गई छोटी सी इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सर्वे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा. और डेटा भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी याद रखने में, डोंट वरी अबाउट दैट. So if we talk about milk production first, total milk production is 247.87 million ton, which is an increase of 3.58% over the previous year, that is 2023-24. और जो अभी हम करंट डेटा की बात कर रहे हैं दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, 2024-25 की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, और इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025, राइट? टोटल मिल्क प्रोडक्शन 247.87 million tons, growth rate of 3.58% as compared to the previous year. The per capita availability, ठीक है, अवेलेबिलिटी है ये, ऑफ मिल्क इज 485 ग्राम्स पर डे. पर कैपिटा हमारे देश में जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है दैट इज 485 ग्राम्स पर डे. अब वो कंज्यूम कितना हो रहा है, दैट इज द डेटा इज नॉट देयर. ठीक है जी, अवेलेबिलिटी है कि मतलब हमारे देश में हर इंसान 485 ग्राम दूध रोज पी सकता है, लेकिन पीता है या नहीं, दैट इज नॉट क्लियर, राइट? एंड इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन, ये तो आपको पता ही होगा. नाउ व्हिच आर द टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री?
सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, जनरली उत्तर प्रदेश ही रहता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऊपर नीचे होता रहता है। तो दिस टाइम इन 2025 इट इज उत्तर प्रदेश, राइट। आई थिंक लास्ट ईयर भी उत्तर प्रदेश ही था, with 15.66% share in the total milk production in the country, followed by Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. And these 5 states together contribute more than 54% of the total milk production in the country. कितना है एग्जैक्ट? 54.09। इन सब के टॉप 5 स्टेट्स के आपको परसेंटेजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टॉपर है उत्तर प्रदेश उसका याद रखेंगे, दैट इज 15.66%। बाकी सबके परसेंटेजेस आपको याद रखने की देयर इज नो नीड। क्लियर। मूविंग अहेड टू द एग प्रोडक्शन। ठीक है, एग प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल एग प्रोडक्शन कितने थे जी, टोटल अंडे कितने हमारे देश में बनाए गए पिछले 2024-25 में? 149.11 बिलियन। ठीक है, एंड इट वाज आल्सो देयर वाज एन इंक्रीज, देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 4.44% एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे भी क्या है, 2023-24 ही है, राइट। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग, ठीक है, एक साल में एक पर कैपिटा एग्स कितने अवेलेबल होते हैं? 106। ठीक है जी, 106 एग्स पर एनम पर कैपिटा इज अवेलेबल, राइट। एंड आउट ऑफ द टोटल एग्स प्रोड्यूस्ड, कमर्शियल पोल्ट्री कंट्रीब्यूटेड 84.49%। ठीक है जी, कमर्शियल पोल्ट्री से एग्स कितने आते हैं? 84.49% आता है। और इसीलिए बोला जाता है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अब जो अंडे हैं वो फार्म मेड एग्स हैं, वो मुर्गे घर से नहीं आ रहे या डक से नहीं आ रहे, राइट। And India ranks second in the world in terms of total egg production. Now, which are the top 5 egg producing states? Andhra Pradesh is at number 1, followed by Tamil Nadu, Telangana, West Bengal and Karnataka. So southern states are leading states in the in terms of egg production in the country, क्योंकि टॉप 5 में से जो टॉप 4 है वो southern states ही है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। ठीक है, and again you need not remember the percentages of all these topper states, just remember the percentage of Andhra Pradesh, that is 18.37%. ठीक है, and together these 5 states contribute 64.37% of India's total egg production. क्लियर है? आगे चलते हैं जी मीट प्रोडक्शन पे। मीट प्रोडक्शन कितना रहा? टोटल मीट प्रोडक्शन 10.50 मिलियन टन्स एंड it has also registered a growth of 2.46% as compared to the previous year, right? Now, do remember India ranks 4th in the world in terms of total meat production. And if you talk about the top 5 meat producing states in the country, top पे है West Bengal, followed by Uttar Pradesh, then Maharashtra, then Andhra Pradesh and Telangana. And I would suggest you to remember top 5 in all the cases. ठीक है, टॉप 5 आपको याद रखने चाहिए, because you are targeting the NABARD examination and there is a specific syllabus, animal husbandry, and this is a very recently released and a very important report with respect to animal husbandry. So I would suggest you to remember the top 5 states at least. ठीक है, अगेन परसेंटेजेस आपको टॉप 5 याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉपर की परसेंटेज याद रख लेंगे तो दैट वुड बी गुड इनफ। ठीक है, नाउ दीज 5 स्टेट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट 57.55% ऑफ द टोटल मीट प्रोडक्शन इन द कंट्री। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुल प्रोडक्शन की बात करें, सो इन 2024-25 द टोटल वुल production stood at 34.57 million kilograms, which is a growth of 2.63% as compared to the previous year. ठीक है जी, इसमें यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी कम है, 2.63%। टॉप 5 वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हमारे देश में? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान में देखो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द वुल पूरे देश का कहाँ से आता है? सिर्फ राजस्थान से आता है, एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द शीप रेयरिंग। ठीक है, इन राजस्थान। जम्मू एंड कश्मीर 22.88%, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। तो आप देखेंगे एक्सेप्ट गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ दे, नहीं वो वाला फैक्ट गलत है, तो राजस्थान सबसे ऊपर है 47.85%, राइट। एंड टुगेदर दीज स्टेट्स अकाउंट्स फॉर 85.99% ऑफ द कंट्रीज टोटल वुल प्रोडक्शन। क्लियर है जी? तो ये थे 4 स्टैटिस्टिक्स अबाउट एग, मीट, वुल एंड मिल्क। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंडिया इन द वर्ल्ड की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया इज रैंक्ड एट नंबर 1। ठीक है, ये इस बार 2025 वाले में थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, अलग से पाई चार्ट बनाया है। इंडिया, यू कैन सी इंडिया शेयर इज 25%, 1/4 ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज डन इन इंडिया। ठीक है, पूरी दुनिया का 1/4 मिल्क जो है सिर्फ इंडिया में बन रहा है, विच इज अ वेरी बिग परसेंटेज।
followed by USA 10%, then Pakistan 7%, China 5% and Brazil 4% and rest remaining countries में 49%। तो यानी कि ये जो 5 कंट्रीज है ये मिला के कितना हो जाता है 51%, जिसमें ओवरऑल का 25% किसका है, इंडिया का शेयर है, राइट। टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल एग प्रोडक्शन, सो इंडिया इज रैंक्ड एट नंबर 2nd पोजीशन। नंबर 1 पे कौन है जी, चाइना, 37% शेयर इन द ग्लोबल एग प्रोडक्शन। इंडिया का कितना है 8%, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, यूएसए एंड ब्राजील, राइट। एंड रिमेनिंग कंट्रीज का सिर्फ 30%, यानी कि ये 5 कंट्रीज मिला के 62% ऑफ द एग प्रोड्यूस करती है पूरी दुनिया का। These 5 countries together constitute 62% of the total of the global egg production. Clear है जी? And in terms of meat production, we are ranked at number 4, followed by we are ranked at number 4 और हमारे सबसे ऊपर कौन है, चाइना, then USA, ब्राजील, इंडिया and then रशिया, ठीक है। और बाकी remaining countries 45%, यानी कि these 5 countries together contributes 55% of the global meat production, ठीक है। एंड ये बात मैं आपको बता दूं, और वूल में हमारी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो दिया भी नहीं है। पोजीशन हमारी ग्लोबली अच्छी किसमें, एक तो मिल्क में नंबर 1 पे है, एग में नंबर 2 पे है और मीट प्रोडक्शन में नंबर 4 पे है, ठीक है जी। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था 10 मिनट और ये एक रिपोर्ट डन और 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के डन। इफ यू वांट टू हैव द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, जस्ट स्कैन दिस QR कोड, join the Telegram channel and get the PDFs. And if you have any doubt, you can just DM me at Mashi Manish, and you can also follow me on Instagram at manish.mentor. Manish.mentor. All right, thank you very much, my dear friends. PDF जरूर ले लेना, 2 बार रिवाइज कर लोगे, 3 बार रिवाइज कर लोगे, you will be able to remember and recall everything. Thank you very much. Goodbye, take care, and God bless.